السلام علیکم ناظرین، لرن آن لائن وتھ فیضان خان میں آپ سبھی کا استقبال ہے۔ ہمارے خصوصی اسپیکر ہیں مولانا مصطفیٰ مدنی صاحب، جن کی بصیرت افروز تقریر سے سوچنے اور سمجھنے کے ساتھ عمل کی توفیق ہوتی ہے، دل کی دنیا بدلتی ہے، حب الوطنی اور ایثار و اخلاق کے جذبات فروغ پاتے ہیں۔ آپ بھی سنیے اور اپنے اندر انقلابی تبدیلیاں محسوس کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آئیے ایک نیا موضوع لیتے ہیں، دلچسپی کا موضوع۔ وہ موضوع ہے خان سر کا موضوع، ایک ایسا ٹاپک جو بڑی تیزی کے ساتھ واٹس ایپ میڈیا میں چھا گیا ہے، ٹویٹر اور فیس بک پر ایک ایسا موضوع بنا ہوا ہے کہ اس سے اہم اس وقت کوئی موضوع نہیں، اور جو لوگ مصروف ہیں وہ نہایت ہی اہم ہیں، بڑے قیمتی ہیں، اور جو باتیں جاری اور ساری ہیں، جو بحث کا اصل مدعا ہے وہ بڑا ہلکا سا ہے، عجیب سا ہے۔ خان سر، ان کو کام کرتے ہوئے کئی سال ہو گئے۔ ان کا تعارف یہ ہے کہ وہ پٹنہ میں ایک کوچنگ چلاتے ہیں، اور کوچنگ وہ بھی مسابقاتی امتحان میں سلیکشن کے لیے، ہائر سلیکشن کے لیے، مختلف قسم کے، اور اس میں ان کا جو ٹاپک ہے وہ بڑا ہی اہم ٹاپک ہے، جو تمام مسابقاتی امتحان میں، تمام کمپٹیشنز میں اہم ہوتا ہے۔ کوئی بھی کمپٹیشن ہو، کسی بھی لائن کا ہو، وہ ہے جنرل نالج کا، یعنی گویا کہ انہیں اپنے بچوں کو جنرل نالج کے لیے تیار کرنا ہوتا ہے، جس میں مذہبی بھی ہوتی ہیں، تاریخی بھی ہوتی ہیں، جغرافیائی بھی ہوتی ہیں، معلومات کی بھی ہوتی ہیں، سائنسی بھی ہوتی ہیں، مختلف قسم کی ہوتی ہیں۔ نہایت ہی خشک موضوع، لیکن خان سر نے اللہ کی اپنی دی ہوئی صلاحیت کی بنیاد پر ایک ایسا کام کیا ہے، ایک ایسا کارنامہ انجام دیا ہے، کوچنگ کی دنیا کے بادشاہ بن گئے۔ دیکھتے دیکھتے اس لاک ڈاؤن کے پیریڈ میں، جب آن لائن بہت سارے لوگ بمشکل کوچنگ کا نظام چلا رہے ہیں، اور جو لوگ جڑے ہوئے ہیں، جو بچے ہیں، وہ سمجھتے ہیں اس کا کوئی بہت زیادہ فائدہ نہیں ہے، شکایت کر رہے لوگ۔ خان سر کے بچے بڑھتے گئے، لاکھوں کی تعداد میں ہو گئے۔ جو ان کے کلاس روم میں پڑھتے تھے وہ تو ہزار میں تھے، اور جب سوشل میڈیا پر وہ آئے تو لاکھوں میں ہو گئے تعداد، اور یہی وجہ بن گئی خان سر کے سامنے آنے کی، ان کے ابھرنے کی، ان کے سلسلے میں لوگوں کو کچھ کہنے کی، ورنہ پٹنہ میں تو ان کا کئی سالوں سے چل رہا۔ ہزاروں لوگ تیار ہوئے ہیں جنہوں نے ان سے سیکھا ہے، اور کتنے ایسے سینکڑوں لوگ ہوں گے جنہیں بہت اچھی نوکریاں مل گئی ہوں گی، جنہیں کامیابی ملی ہوگی۔ اس کامیابی پر کسی نے ڈیبیٹ نہیں کیا، ان کے ذریعے نکلے ہوئے بچوں کو کسی نے استقبالیہ نہیں دیا۔ انہوں نے جس ٹاپک پر محنت کر کے لوگوں کو پڑھایا ہے، اس ٹاپک پر کسی نے تیاری نہیں کی۔ وہ سارے لوگ جو آج میڈیا پر ان کے خلاف یا ان کے موافق بول رہے ہیں، انہوں نے کبھی توجہ نہیں دی کہ جو کام وہ بچوں کے لیے کر رہے ہیں اور بھی لوگ کرنے لگے۔ ایسے انسٹیٹیوٹ لکھنؤ میں بھی بن جائیں، بنگلور میں بھی بن جائے، بامبے اور دلی میں بھی بن جائے، گورکھپور الہ آباد میں بن جائے، اور ایسے ایک نہیں 50 خان سر ہوں جو بچوں کو پڑھائیں۔ دوسری کوالٹی ان کی یہ سامنے آئی ہے ان لوگوں کے ذریعے جو ان پر سخت تنقیدیں کر رہے ہیں، وہ یہ کہ وہ بہت ہی سستی کوچنگ ہے، 200 روپے میں۔ آج کوچنگ کا نام آتے ہی، اور خاص طور پر مسابقاتی امتحان کے لیے، لاکھوں کا تصور آتا ہے، ہزاروں کا تصور آتا ہے۔ 1 لاکھ 50,000، 10 لاکھ 20 لاکھ لوگ خرچ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور مجبور ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ مجبور ہوتے ہیں، بچے بیچارے کہیں سے پیسہ اکٹھا کر کے اور دیتے ہیں کوچنگ۔ خان سر 200 روپے لیتے ہیں، صرف 200 روپے۔ سوچ سکتے ہیں آپ، ایک پرائمری میں، ایک نہایت ہی نیچے کلاس میں، وہاں بھی فیس 200 روپے نہیں ہوتی، لیکن ان کی فیس کتنی ہے؟ 200 روپے۔ 200 روپے میں وہ آدمی کام کر رہا،
और सुबह शाम बच्चों के एतबार से वक्त निकाल करके अपना तन मन धन लगा के काम कर रहा है। उसके इस काम को हिंदुस्तान में अहमियत मिलनी चाहिए थी। वो सारे लोग जो व्हाट्सएप पे बातें करते हैं और गुफ्तगू करते हैं और हिंदुस्तान को ऊपर उठाने के लिए बहुत सारी उनकी अच्छी सोच होती है, उन्हें चाहिए था कि ऐसे आदमी को ढूंढते और उसकी मिसालें दूसरी जगह बनाने की कोशिश करते, मदद लेते। लेकिन अलमिया यही है इंसानों का कि अल्लाह ने अगर किसी को सलाहियत दी है तो दूसरे इंसान जो उस सलाहियत से फायदा उठाते हैं वो तो खामोश रहते हैं, लेकिन जिन्हें अभी उस सलाहियत की जरूरत नहीं है वो उसके पीछे पड़ जाते हैं। यकीन जानिए, अगर जो लोग व्हाट्सएप पे खान सर के खिलाफ बोल रहे हैं, उन्हें अगर अपने किसी बच्चे को उनसे कोचिंग कराना हो तो शायद खान साहब के ताल्लुक से उनकी राय बदल जाए। लेकिन वो दूर बैठे हुए, कोई साउथ में है, कोई नॉर्थ में है, कोई यहाँ है, कोई वहाँ है। और हद ये है कि अक्सर लोग जो उसमें बोल रहे हैं उनकी फील्ड तालीम नहीं है। वो आलिम है, अहले इल्म है, दानिश्वर हैं, लेकिन तालीम के मैदान में उनका कोई काम नहीं। खास तौर पर उस तालीम के मैदान में जिसमें खान सर ने काम किया है, मुसाबकात की तैयारी में। याद रखिए, ये फील्ड बहुत अहम है। एक ज़माने में नूर फाउंडेशन के जरिए हम लोगों ने कोशिश की और सोचा कि बच्चों को इस तरह की तैयारी कराई जाए और उनके लिए प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए, उन्हें रहनुमाई दी जाए, गाइडलाइन का काम किया जाए, गाइडेंस दी जाए। लेकिन इतना मुश्किल काम था कि इसमें बहुत आगे नहीं बढ़ सके। यकीन जानिए, बड़ा काम है। हजारों लोग पढ़ के तैयार होते हैं, ग्रेजुएशन कर लेते हैं, मैट्रिक कर लेते हैं, इंटर पास हो जाते हैं, अच्छे नंबरात से पास होते हैं, लेकिन उनके अंदर निखार नहीं होता है। वो मेहनत करके चीज़ों को, सलाहियतों को यकसू नहीं कर पाते हैं। उन्हें जिस तरह प्रेजेंटेशन करना चाहिए, अपनी सलाहियत का इजहार करना चाहिए, वो काबिलियत नहीं आ पाती है। इस वजह से वो कंपटीशन में नाकाम हो जाते हैं। और कितने ऐसे बच्चे हैं कि उन्हें कंपटीशन के जरिए ये हौसला मिल जाता है और ये ताकत मिल जाती है कि वो बड़े बड़े कंपटीशन में कामयाब हो जाते हैं। वो इन्हीं खान सर जैसे लोग, बहुत सारे लोगों की देन होती है। तो आज जो लोग खान सर के ताल्लुक से मसरूफ हैं और मशगूल हैं, उसके सिलसिले में उनके दो बड़े एतराज़ात सामने आए हैं। इसलिए उस पर गुफ्तगू हम जैसे लोगों का करना ज़रूरी है कि खान सर को ये महसूस होना चाहिए कि आपकी अच्छाइयों, आपकी मेहनतों और तलबा के तई आपकी तगोदो के साथ हम लोग भी हैं। उसे हम महसूस करते हैं, हम जैसे हज़ारों लोग महसूस करते हैं। हम इस मामले में आपके साथ हैं। आपने अच्छा काम किया है, इस अच्छे काम को जारी रखिए। तालीम को बढ़ावा देने के लिए पटना में कोचिंग सेंटर कायम करके आपने एक बड़ा काम किया। आपने बच्चों की तरबियत, बच्चों को आगे बढ़ाने, एजुकेशन में उनको मजबूत करने और उनकी तैयारी कराने के लिए जो सिस्टम अपनाया है, उसे आज हमारे मुल्क और समाज को उसकी ज़रूरत है। मुख्तसर, कम खर्च में, आसानी के साथ, अच्छे से अगर आप काम कर रहे हैं तो यकीनन ये बड़ा अच्छा काम है और हम आपका इस्तकबाल करते हैं, आपको हौसला देते हैं और आपका साथ देने का अहद करते हैं। लेकिन एतराज़ जो दो है, मैं उनसे भी कुछ कहना चाहता हूँ। पहला एतराज़ क्या है? एक कॉमन लोगों का है। वो एतराज़ है कि उनका नाम क्या है। उनका नाम ले करके उनके हिंदू मुसलमान होने की बहस चल रही है। जितने लोगों ने ये बहसें छेड़ी हैं, मैंने सुना और कुछ लोगों से मेरी गुफ्तगू भी हुई, उन्होंने किसी ने बराह रास्त गुफ्तगू की कोशिश नहीं की है। हाँ, कुछ चैनल्स हैं जिन्होंने इंटरव्यू लेने की कोशिश की है और उसको अगर सुनिए तो बात क्लियर हो जाती है कि उनका नाम जो कुछ भी है, खान सर ही उनका तारुफ है और खान सर काफ़ी। इसलिए लोगों को मुतमईन होना चाहिए। नाम का अख्तियार खुद इंसान का अपना है। इंसान नाम बदल लेता है, उससे हमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। न नाम को उस आदमी ने धोखे के लिए रखा है, क्योंकि ये कोई धोखा नहीं है। नाम इंसान का तारुफ है। धोखा दे तो आप उसको पकड़िए, और नाम से यहाँ काम नहीं हो रहा है, बल्कि सलाहियत से, मेहनत से, तवज्जो से काम हो रहा है। दूसरी चीज़ है कि खान सर बहुत सारी वो गुफ्तगू करते हैं जिसकी बुनियादें और जिसमें मालूमात कमज़ोर होती हैं। मसलन खाने काबा को उन्होंने बता दिया कि ये हज का मरकज़ है, यहीं जाने से हज हो जाता है, ये मक्का है।
आप जरा सोचें, जरा अपने घरों में आस पास रहने वालों में उस तबके को छोड़ दीजिए जिन्होंने मदारिस में तालीम हासिल की है, जो कॉन्वेंट स्कूलों के पढ़े हुए बच्चे हैं और जिन्होंने कहीं भी मदरसों में और तालीम नहीं हासिल की है। आप जरा उनसे पूछ लीजिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नहीं जानते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम नहीं जानते, हजरत आयशा का नाम नहीं जानते, इस्लाम की बुनियादें नहीं जानते, तो आप खान सर से ये तवक्को रखते हैं कि वो जो बताएंगे वो उलमा की तरह बताएंगे, बारीक बीनी से बताएंगे। ये कैसे होगा? ये तो आपका काम था कि ये चीज़ बताते कि आप आगे बढ़िए। आप खान साहब को मुत्तहम मत करिए, उससे काम नहीं चलेगा। आपकी जिम्मेदारी थी, जो काम आपने नहीं किया उसकी गलतफहमी या उस वजह से जो मालूमात की कमजोरी है, आप जरा जाइए तो जदीद तबके में, तब आपको अंदाजा होगा। निकलिए अपने जजीरों से और अपने चार दीवारियों से, तब आपको अंदाजा होगा कि लोगों को कितना सही सही दीन के बारे में मालूमात हासिल है। लेकिन दीन के मालूमात की जिम्मेदारी देना ये किसका काम था? यकीनन आप कहेंगे खान सर इतने पढ़े लिखे हैं, उन्हें चाहिए कि रिसर्च करें, उन्हें चाहिए कि मालूमात हासिल करें, उन्हें चाहिए कि मक्के जा करके और देख कर आएं और फिर अपने बच्चों को पढ़ाएं। अगर खान सर यही करने लगेंगे तो फिर जो वो काम कर रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे। ये आपका काम है, ये आपकी जिम्मेदारी है। एक मौका आपके पास आया था कि आप सब इस बात पर मेहनत करते कि खान सर को हम दीन की सही मालूमात पहुंचाएंगे, खान सर को हम इस्लामियात के जो हिस्टोरिकल पैलेसेस हैं उनको सही से उनके सामने रखेंगे, खान सर के सामने हम लेकर जाएंगे मक्का मदीना, हज उम्रा, सारी चीजों की तफसीलात उनको हम फराहम करेंगे। ये करने के बजाय आपने इल्जामात देना शुरू कर दिया, आपने मुत्तहम करना शुरू कर दिया। मुझे याद आती है मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी का एक वाकया, जो मुफस्सिर कुरान बने, जिन्होंने बड़ा काम किया। लोग मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी जानते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी का एक मरहला है कि वो मुल्हिद हो गए, इस्लाम पर उनका एतमाद उठ गया था, उलमा उन पर फतवा देना चाहते थे। एक साहब उनके निकाह के मौके पर बैठ गए, जो निकाह पढ़ा रहे थे उनसे कहा कान में खामोशी से कि इनको कलमा पढ़ा लीजिए, ये मुल्हिद हो गए हैं। मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी ने लिखा है अपनी आप बीती में कि जो साहब नसीहत कर रहे थे कि इन्हें कलमा पढ़ा लीजिए, मुल्हिद हो गए, उन्हें हमारे इस्लाम की कभी फिक्र नहीं रही। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरे दिल में इस्लाम कैसे दाखिल होगा। वो सोचते थे निकाह के मौके पे हमसे कहेंगे तो कलमा तो हम पढ़ ही लेंगे, लेकिन क्या हम इससे मुसलमान हो जाएंगे? जाहिद तंग नजर ने मुझे काफिर जाना और काफिर ये समझता है मुसलमान हूं मैं। अल्लामा इकबाल ने बहुत पहले कहा था। तो खान सर के बारे में भी जो बहस है वो इसी अंदाज की है। इस वक्त कुछ लोग इस पर आमादा हैं कि खान सर को काफिर साबित कर दें, इस पर आमादा हैं कि उन्हें एजेंट साबित कर दें, इस पर आमादा हैं कि उन्हें आरएसएस का एजेंट साबित कर दें। आप जरा जाकर कभी जायजा तो ले लें कि खान सर का काम क्या है, खान सर ने क्या बच्चों को दिया है, जो बच्चे उनसे पढ़ रहे हैं। आपने ये नहीं सोचा कि अगर आप बहैसियत आलिम के तनकीद करेंगे और एक ऐसे इंसान पर जो लोगों में काम कर रहा है, तो इसका नतीजा क्या होगा? वो उससे नहीं बदगुमान होगा, क्योंकि वो तो उससे जुड़ा है, उसने फायदा उठाया है। वो आपसे और आपके मिशन से बदगुमान होगा। दाई ये नहीं करता है, दाई तो बदगुमानी दूर करता है, दाई बदगुमानी पैदा नहीं करता है। अफसोस की बात है। यकीनन जो लोग कर रहे हैं बड़े जज्बे से कर रहे हैं, मैं उनके जज्बे की कदर करता हूँ। जिन्होंने तनकीदें की है बड़ी बड़ी, यकीनन उन्होंने इस नीयत से की है कि खान सर की इस्लाह हो जाए, लेकिन इस्लाह का यह तरीका नहीं है, इस्लाह का यह अंदाज नहीं है। आपको अपना अंदाज बदलना होगा। खान सर एक कीमती जौहर है, उनके इल्म से, उनके तजर्बे से, उनकी खुदादाद सलाहियत से आप मिल्लत को महरूम मत होने दीजिए और उनको ढकेल कर कुफ्र की तरफ मत पहुंचाइए। अगर आपको शक है तो जाइए, मेहनत कीजिए और इस्लाम के दायरे में उन्होंने जैसे अपने आप को रखा है, आप उस दायरे को मजबूत करिए, उनके इस्लाम को मजबूत करिए और उनसे जो पूरे हिंदुस्तान के बच्चों को, हर कम्युनिटी के बच्चों को, मुसलमान और गैर मुस्लिम बच्चों को फ़ायदा पहुंच रहा है, उसे आप पहुंचाने में मददगार बनिए, मुआविन बनिए। उनसे कहिए कि हाँ, आप अपना सेंटर दूसरी जगहों पर खोलिए और अपना रोल अदा करिए। कहीं ऐसा ना हो कि खान साहब को आप तो तनकीद करें नेक नियति से, लेकिन शैतान उसका फ़ायदा उठा ले और खान साहब को इस बात पर आमादा कर दे कि देखिए आप तो अपने आप को अच्छा बनाने में लगे हैं, लेकिन ये लोग हैं जो चाहते हैं कि आप काफिर हैं, तो क्यों ना आप कुफ्र ही अपना लीजिए। क्या ज़रूरत है ऐसी कौम के साथ
ایسے دین والوں کے ساتھ رہنے میں جو آپ کو اپنا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یقین جانیے، اپنا بنائیے، غیروں میں مت ڈھکیلیے۔ انسان کی قدر کیجئے، اس کے کاموں کی قدر کیجئے، اس کے صلاحیت کی قدر کیجئے، اور جو بات قابل تنقید ہے اس کو شرعی وسیلوں پر تنقید کریے اور براہ راست معلومات کی کوشش کریے، پھر اپنی عمارت کھڑی کریے، ہوا میں معلومات کو مت لیجیے۔ لرن آن لائن کی جانب سے آپ سے بس اتنی التجا ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں، جس سے ہماری ہر ویڈیو آپ تک اپلوڈ ہونے کے ساتھ ہی پہنچ سکے۔ شکریہ۔